Hello everyone. Aujourd'hui, nous allons étudier l'imparfait. Comme nous avons déjà étudié passé récent et passé composé. Passé récent utilise pour le passé, mais récemment. Et passé composé aussi on utilise pour passé, mais ce que nous avons déjà fini. Maintenant, l'imparfait. L'imparfait est très important. Normalement, il utilise avec passé composé. Hello everyone, we already learned two tenses in French for past. First was passé récent, that was recent past, venir plus de plus infinitive. And then recently we did passé composé. Passé composé in English we can say it is simple past or past indefinite. Now in front of you there is a tense l'imparfait. L'imparfait it is past continuous. In English we can say it is past continuous or it is used with used to. So whenever we say our past habits, we must use always imperfect. So imperfect it is very important tense, so you must understand imperfect. We usually use whenever we narrate any story, any incident, anything in past, any moment, any unforgettable moment in your life, or any for example if you want to narrate your vacation, so you must use l'imparfait et passé composé. You must use imparfait and passé composé. For example in English also we use if we narrate anything in past we use past indefinite and past continuous, and sometimes we use used to. So now I am going to explain what is imperfect. Imperfect मैं आपको समझा दूं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंस है, इसका यूज़ पासे कंपोजे के साथ ही लिया जाता है, और ये यूजुअली जो आता है काम में वो या तो आप बोलते हो रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, या फिर आप बोलते हो मैं ऐसा करता था या करती थी, सो दैट इज़ एन इम्परफेक्ट. धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. You will understand facilement. Vous allez apprendre facilement. You will understand it very easily. Don't worry. So l'imparfait. First of all, l'imparfait. The imperfect is a French past tense. It describes states and actions that we are ongoing or repeated in the past. We conjugate the imperfect by adding the endings AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ and AIENT to the root of present tense new form of the verb. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, कोई भी वर्ब होती है हमको उसके साथ में सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस में उसकी कॉन्जुगेशन आनी कंपलसरी है. यू मस्ट नो द कॉन्जुगेशन इन प्रेजेंट टेंस. If you don't know the conjugation in present tense, then you cannot understand l'imparfait. For example, there is a verb avoir. So avoir का रूट जो है वो है आपका AVONS. तो अब आपको क्या करना है, उसका ONS काटना है और AV के साथ में ये आपको फॉर्मूला पुट करना है. ज के साथ में AIS, ट्यू के साथ में AIS, इल एल ओ के साथ AIT, नू के साथ में IONS, वू के साथ में IEZ एंड इल और एल प्लूरल के साथ में AIENT. आगे पढ़ते हैं एक बार. हाउ टू कॉन्जुगेट द इम्परफेक्ट टेंस इन फ्रेंच. टू कॉन्जुगेट द इम्परफेक्ट टेंस इन फ्रेंच वी टेक द प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, स्टीम ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, द वर्ब, द नाउन फॉर्म एंड add the following ending identical for verbs of all groups. तो बिल्कुल इजी, आपको नू के साथ में फॉर्म
लेना है, उसके साथ में जो ओ एन एस लगता है आपको उसको ओ एन एस को काटना है, और ओ एन एस काटने के बाद में आपको वो वाला फॉर्मेट पुट करना है, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, ए आई टी, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड एंड ए आई ई एन टी। एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ईयर एंडिंग ग्रुप की। ईयर एंडिंग ग्रुप के अंदर हम सभी को पता है देयर इज अ वर्ब एमे। सो एमे इज अ वर्ब, इट मीन्स टू लाइक, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के अंदर आप देखेंगे नू के साथ में जो कॉन्जुगेशन है उसमें है ए आई एम ओ एन एस, नूजेमो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल, इसका जो ओ एन एस है इसको काटना है। इसका ओ एन एस हम काट देंगे तो ओनली बचेगा ए आई एम, ठीक है। अब ए आई एम जो बचेगा उसमें हमको ये फॉर्मेट लगाना है, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, ए आई टी, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, ए आई ई एन टी। So we have to cut ONS and put this format AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ and AIENT. It is in ER ending group. Okay. Now we come to IR ending group. So for example, there is a verb finir. Finir is a verb to finish. तो इसमें क्या करना है आपको, नू के साथ में लेंगे नू फिनिसो। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट मैंने आपको क्या बोला, ओ एन एस को काटना है। वी हैव टू कट ऑलवेज ओ एन एस। यहाँ पे डबल एस ओ एन एस नहीं कटेगा, ओनली ओ एन एस। हमेशा लास्ट में ओ एन एस को काटना है और उसके बाद में फॉर्मेट लगाना है, मतलब डबल एस तक आप लेंगे। इसके बाद में आपको पुट करना है ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड एंड ए आई ई एन टी, ठीक है। सबसे अच्छी बात इसमें इरेगुलर वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है कि अब इरेगुलर का भी कुछ अलग से पार्ट आएगा, सो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट, जैसे ये इरेगुलर वर्ब में थी हमारी दौरमीर, आपको याद हो तो दौरमीर हमने करी थी। द कॉन्जुगेशन ऑफ दौरमीर इज ज दौर, त्यू दौर, इल दौर, एल दौर, ओ दौर, नू दौर मो, वू दौर में, इल दौर्म, एल दौर्म। तो अब आपको क्या फॉर्मेट है, नू के साथ में ओ एन एस को लगाना है और ओ एन एस उसका काटना है, नू दौर्मो। So we have to cut ONS and put that format. Je dormais, tu dormais, il dormait, elle dormait, on dormait, nous dormions, vous dormiez, il dormait, elle dormait. अब आर ई एंडिंग के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आर ई के अंदर आपका हो जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वॉन्द्र। वॉन्द्र इज अ वर्ब टू सेल, ठीक है। सो नू वॉन्डों, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट कोई चेंजेस नहीं है, सॉरी। ओ एन एस को आपको काटना है एंड देन यू हैव टू पुट दैट फॉर्मेट, je vendais, tu vendais, il vendait, elle vendait, on vendait, nous vendions, vous vendiez, il vendait, elle vendait। सो इट इज वेरी इजी। आपको उसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे कॉन्जुगेशन होगी, क्या होगी, बस आपको ये फॉर्मेट याद करना है, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, ए आई टी, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड एंड ए आई ई एन टी। सेम फॉर्मेट रहेगा सभी में, ज, चू, इल, एल, ओ, नू, वू, इल और एल, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको जो नू के साथ है वो कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बात करता हूं आले की। अब आले की कॉन्जुगेशन में नू के साथ में आता है नू जालो। सो आलो में क्या करना होगा, आपको उसका ओ एन एस काटना है और आपको फॉर्मेट पुट करना है, जाले, चू आले, इल आले, एल आले, ऑन आले, नू जालियों, वू जालिये, इल जाले, एल जाले, ठीक है। ओके, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल्स दिए हैं, लिमिटेड 4 एग्जाम्पल्स, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको सारी वर्ब्स आती हैं, आपको एक पूरी चार्ट बनानी चाहिए, उसमें आपको लगाना चाहिए प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेशन ये होती है, पासे रेसो में ये होती है, पासे कंपोजे में ये होती है, फ्यूचर पॉश में ये होती है, लैम्पेरातिव में ये होती है। नाउ इट इज इम्पारफे, और इम्पारफे में ये होती है। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन लैम्पेरातिव एंड लैम्पारफे। लैम्पेरातिव ऑर्डर फॉर्म के लिए होता है और इम्पारफे पास्ट टेंस होता है, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, द वर्ब avoir is regular in imparfait, comme je vous ai déjà dit, which I already told you. Only être has an irregular conjugation in this tense. Only être को consider किया गया है irregular,
और वो भी आपको एक ही बारी में याद हो जाएगी। इसका जो कॉन्जुगेशन होता है वो होता है जेते, चुएते, इलेते, एलेते, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient। avoir में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि avoir में आप देखो नू के साथ में क्या लेते हैं, nous avons, AVONS। तो उसका ONS काटना है और ये वाला फॉर्मेट पुट करना है, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ एंड AIENT। दैट्स इट। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं कि कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज में ले सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, tous les jours Marie et Paul couraient dans le parc. Now courir is a verb. I guess you already know what do you mean by courir. Courir is a verb, it means to run. Tous les jours, it means every day, Marie and Paul. अब now courir it means run in the park. तो अब आपको क्या है, ये हैबिट हो गई। तो जो हम इंग्लिश में यूज में लेते हैं ना, यूज टू मतलब कोई भी पुरानी हैबिट, कि आई यूज टू डू इट, आई यूज टू रन, तो यहां पर हो जाएगा रन। tous les jours, every day, Marie and Paul used to run in the park. It means, हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं तो हर दिन मारी और पॉल पार्क में दौड़ते थे। ठीक है। तो पास्ट के अंदर कोई भी हैबिट की आप बात कर रहे हो या पास्ट कंटिन्यूअस आप बता रहे हो कि ऐसा हो रहा था, देन वी मस्ट यूज ऑलवेज लैम्पार्फे। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें मैं आपको जो पासे कंपोजे और इम्पार्फे में डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा पासे कंपोजे में आएगा, कौन सी चीज इम्पार्फे में आएगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन A2 लेवल। A2 क्या मैं बोलूंगा, B2 C2 तक ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी पास कोई भी चीज आप नहीं लिख पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, Yves et moi nous chantions ensemble. It means Yves and me, we used to sing together. Chanter is a verb to sing, so it is used to sing together. Yves and me, Yves और मैं, हम साथ में गाते थे। Next, nous regardions la télévision tous les jours. We used to watch the TV, the television every day. हम टेलीविजन रोजाना देखते थे। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, vous achetiez, acheter is a verb to buy। ठीक है, नू के साथ में लेंगे, nous achetons होता है, ONS काट के, वो के साथ में लगाएंगे, इसका जो ONS है वो काट देंगे और IEZ। So vous achetiez le journal tous les jours. It means you used to buy the newspaper each day. In हिंदी, प्रत्येक दिन आप अखबार खरीदते थे। En général, elle choisissait une glace. In general, she used to choose a ice cream. Generally, सामान्यतः वो पसंद करती थी या वो चुनती थी आइसक्रीम, मतलब थी और था, that is an always imparfait. Tu arrivais tous les jours avant nous. You used to arrive every day before us. It means आप हमेशा, toujours it is always, आप हमेशा हमसे पहले आते थे। Avant it is before. Next, quand j'avais 10 ans, je voulais devenir gendarme. When I was 10 years old, please remember, always whenever we say our age, whenever we tell our age, we must use always avoir. If we were to translate, then we use être, but in French it is different. We always use avoir whenever we tell our age. So quand j'avais, normally we say j'ai 25 ans, for example. I am 25 years old, for example. Quand j'avais 10 ans, it means when I was 10 years old, je voulais devenir gendarme. Gendarme, it is policeman. I
आई वॉन्टेड टू बिकम अ पुलिसमैन। जब मैं 10 साल का था तब मैं पुलिसमैन बनना चाहता था। ओके, सो आपका था था आ गया, तब आपको इम्पारफे लगाना है। The next, il était une fois, which is very very important. Il était une fois. We cannot translate word to word. Il était une fois. If you want to translate in English, that is once upon a time. एक समय की बात है। Il y avait un corbeau soif. Il y a it means there is or there are, तो ये il y avait हो जाएगा there was और there were. So there was a thirsty crow. एक समय की बात है, एक प्यासा कौवा था। Il y avait une fois, il y avait un corbeau soif. There was once upon a time, there was a thirsty crow. Ninth, hier soir, il pleuvait toute la nuit. Yesterday evening, it was raining all the night. Toute la nuit, it means all the night. Yes, कल रात, कल शाम को पूरी रात बारिश हुई, मतलब बारिश हो रही थी, बारिश हुई। इल प्लवे, ये एक सिचुएशन है कि बारिश हुई। इल प्लवे, पूरी रात बारिश हो रही थी, कल रात पूरी रात, कल शाम को पूरी रात बारिश हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका à l'âge de 18 ans, je fumais beaucoup. At the age of 18 years, I used to smoke a lot. जब मैं 18 साल का था, 18 साल की उम्र में मैं बहुत धूम्रपान करता था। ठीक है, I hope you understand 80 to 90%, but if you have any question, any doubt, any query, do not hesitate to note down in your notebook. I will definitely explain you when we do our online session. Of course, you will have number of doubts, number of queries, number of problems. So don't worry. I will definitely sort out all your problems. ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं पूरी ट्राई करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स हों, उनको मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं। Faites this exercise et traduisez les phrases en anglais. So do this exercise and translate these phrases in English. ठीक है, आपको इंग्लिश में ये phrases भी करने होंगे, आपको ट्रांसलेशन करना होगा और आपको कॉन्जुगेशन करनी होगी। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। I hope you understood everything. Don't hesitate to ask me if you do not understand anything. Please note down in your notebook and please do your homework, do your devoir. Merci beaucoup. À très bientôt.